everyone, welcome to our channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग जो क्लास करने वाले हैं वो कंप्यूटर की क्लास करेंगे, जो कि क्लास नंबर आपका 12 है। 11 क्लास में भी मैंने आपको MS एक्सेल के जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स थे मैंने वो आपको कराए थे, वो आपके 128 हो गए थे ऑलरेडी। आज मैं जो क्लास करूँगी वो 129 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाली हूँ। MS एक्सेल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने शॉर्टकट्स करवाए थे, आज मैं जो कराऊँगी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊँगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें। स्टार्ट करते हैं 129 क्वेश्चन दैट वी हैव टू स्टार्ट विद। 129 question is which of the following is the latest version of Excel? Excel का सबसे latest version कौन सा है? That is Excel 2013. Excel 2013 जो है वो latest version है. Next question, that is question number 130. Which of the following is a popular DOS based spreadsheet? DOS based spreadsheet जो आपकी है popular, वो कौन सी है? That is Lotus 1-2-3. Lotus 1-2-3 is the popular DOS based spreadsheet. Next question, that is question number 131. That files created with Lotus 1-2-3 have an extension. इनका extension क्या होता है इस फाइल को create करने पे, जब हम Lotus 1-2-3 से create करें, and the extension is .123, क्योंकि यहाँ Lotus 1-2-3 है तो इसलिए .123 is the extension. I think ये easy रहेगा आपके लिए इसको remember करने के लिए. Next question, that is question number 132. The default MS Excel file extension is, जो default जो होता है आपका MS Excel का file extension वो क्या होता है? That is .xls. .xls is the default MS Excel file extension. Next question, that is question number 133. Which of the following is the oldest spreadsheet package? कौन सा सबसे पुराना spreadsheet package है? And the name is VisiCalc. VisiCalc जो है, VisiCalc इसका नाम जो है वो VisiCalc है, ठीक है. This is the oldest spreadsheet package which we have in for this MS Excel spreadsheet. Moving on with the next question, that we have your question number 134. Your 134 question is an Excel worksheet can have a maximum of dash number rows. तो जो हमारी Excel worksheet होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितने number of rows होते हैं? That's it, 1048576. 1048576 is the maximum number of rows in the Excel worksheet. Next question, that is question number 135. An Excel worksheet can have a maximum of dash number of columns. Maximum number of columns तो आपको पता चल गया, that is 1048576. But the maximum number of the columns of an Excel worksheet is 16384, 16,384. You can say that the number of maximum columns in the Excel worksheet. Next question, that is question number 136. MS Excel is a MS Excel क्या है? That is a window based spreadsheet package. MS Excel जो है वो आपका window based spreadsheet package है. Next question, that is question number 137. In Excel, the intersections of column and row is called. जो Excel में अगर हम intersection की बात करें, intersection जो होता है rows and columns, उसे हम क्या कहते हैं? That are known as cells. Next question, that is question number 138. A collection worksheet is called dash. तो collection of worksheet को हम क्या कहते हैं? That is known as workbook. Collection of worksheet is known as workbook. Moving on with the next question, that is question number 139. 139 question is which of the following is not an example of a value? एक कौन सा example नहीं है value का? That is serial number 50771. This is not an example of a value. Next question, that is question number 140. In its default setting, an Excel workbook is made up of sheets and the default number is, जो default setting होती है उसमें Excel workbook जो है वो आपका sheets के through होता है. By default number क्या सा default number होता है? That is 3. Next question, that is question number 141. In an Excel, each sheet in a workbook is displayed as, Excel में हर एक जो sheet होती है workbook में वो किस तरह से show होती है? That is in form of tab, displays as tab. Next question, that is question number 140. In its default setting में Excel margin take are set at, किस तरह से set at होता है? That we have to discuss.
So your question number 142 is, I had said you in its default setting the Excel margin stubs are set as 1.9 inch for the top and bottom margin. Top और bottom margin में आपका 1.9 इंच होता है and 1.8 इंच जो होता है वो आपका लेफ्ट एंड राइट मार्जिन में होता है एंड 0.8 इंच जो होता है वो आपका हेडर और फुटर पे होता है. ओके, रिमेंबर 1.9 इंच जो होता है वो टॉप और बॉटम में होता है एंड देन 1.8 इंच जो होता है वो आपका लेफ्ट एंड राइट मार्जिन में होता है. 0.8 इंच जो होता है वो आपका हेडर एंड फुटर पे होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 143. Which area in an Excel window allows entering the values and formulas? तो Excel विंडो में कौन सा एंटर करते हैं जो वैल्यूज हमें अलाउ करते हैं फॉर्मूला, दैट इज अ फॉर्मूला बार. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 144. ऑन सेविंग अ वर्कशीट द सेव एज डायलॉग, जो बॉक्स जो होता है जब हम सेव करते हैं वर्कशीट को तो सेव एज डायलॉग बॉक्स आता है. वो क्या होता है, दैट इज यूज्ड फॉर सेविंग द फाइल फॉर फर्स्ट टाइम, इज यूज्ड फॉर सेविंग द फाइल बाय द सम अल्टरनेटिव नेम्स. Next question, that is question number 145. The file responsible for starting MS Excel is, फाइल कौन सी responsible होती है MS Excel को start करने के लिए, that is Excel exe. This is a file which is responsible for opening the MS Excel, starting the MS Excel. Moving on with the next question, that is your question number 146. या 146 इज CTRL प्लस पेज अप. जब CTRL के साथ आप पेज अप को प्रेस करते हो दैट विल टेल यू अबाउट, दैट विल टेक यू टू द प्रीवियस शीट. CTRL के साथ पेज अप प्लस करोगे, प्रेस करोगे तब आपका क्या होगा, प्रीवियस पेज अप शीट पे आप चले जाओगे. नेक्स्ट इज योर 147, दैट इज CTRL प्लस C. CTRL प्लस C अगर आप प्रेस करते हो दैट इज इक्विवेलेंट टू कॉपी. कॉपी के इक्विवेलेंट होता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 148. For 148 question, that pressing CTRL plus A does not following. CTRL A क्या नहीं follow करता, that is selects the entire worksheet. Okay. Next does the following, sorry, it follows. CTRL plus A क्या follow करता है, that is selects all the entire worksheet. पूरी worksheet को select कर लेता है. Moving on with the next question, that is question number 149. CTRL plus O. CTRL plus O दबाने से that is equivalent to what, हम CTRL plus O अगर दबाते हैं तो क्या होता है, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल. हमारी जो एग्जिस्टिंग फाइल होती है हम वो ओपन कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 150. विच कमांड इज़ यूज टू क्लोज द विंडो ऑफ एक्सेल. एक्सेल का कौन सा ऐसा कमांड है जिसको हम यूज़ करने के बाद हम वो विंडो को क्लोज कर देते हैं, दैट इज़ ऑल्ट प्लस F4. ऑल्ट प्लस F4 हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो जो हमारी विंडो खुली होती है वो क्लोज हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 151. रोमन सिंबल फॉर द लास्ट कॉलम इन एन एक्सेल शीट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय. जो रोमन सिंबल है लास्ट कॉलम का वो कैसे एक्सेल शीट का कैसे रिप्रेजेंट होता है, एंड दैट इज़ बाय XFD. XFD जो है वो आपका रोमन सिंबल है फॉर द लास्ट कॉलम इन एन एक्सेल शीट रिप्रेजेंटेड बाय द XFD. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 152, दैट विच आर ऑफ द शॉर्टकट्स की ऑफ सेव. सेव का क्या शॉर्टकट की है, दैट इज CTRL प्लस S. अगर आपने वर्क किया है इंडस्ट्री में तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 153, दैट विच ऑफ द शॉर्टकट की टू गो टू ऑप्शन इन एक्सेल. गो टू ऑप्शन एक्सेल में अगर आपको गो टू ऑप्शन यूज़ करना है तब आपका कौन सा शॉर्टकट की है, दैट इज़ F5. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 154. व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू कट एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए कौन सा की यूज़ होता है एक्सेल में, दैट इज़ CTRL प्लस X. मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वी हैव योर क्वेश्चन नंबर 155. Which shortcut command is used to reach the next worksheet. कौन सा shortcut command है जो next worksheet पे पहुँचने के लिए यूज़ होता है, and that is page down. Moving on with the next question that we have is, moving on with the next question, that is your question number 156. Which command is used to copy the formula, not the value, from one data to another. कौन सा ऐसा कमांड है जो कि कॉपी करता है फार्मूला, कौन सा ऐसा फार्मूला है जो कि हमारा वैल्यू को कॉपी करता है ना कि डेटा को, दैट इज पेस्ट स्पेशल. पेस्ट स्पेशल इज दैट फार्मूला दैट कॉपी द डेटा बट दैट डज नॉट कॉपी द डेटा, that copy of value from the data, from one data to the another. Next question, that is question number 157.
विच शॉर्टकट कमांड इज़ यूज टू इंसर्ट द करंट टाइम, कौन सा ऐसा शॉर्टकट कमांड है जो कि यूज़ होता है करंट टाइम को इंसर्ट करने के लिए, दैट इज CTRL प्लस कोलन। CTRL प्लस कोलन आप जैसे ही दबाते हो वैसे ही आपका ये जो इंसर्ट करता है आपका जो करंट टाइम होता है। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 158। The 158 question is which shortcut command is used to insert the current data, कौन सा shortcut command है जो कि यूज़ किया जाता है current data को insert करने के लिए, that is CTRL plus shift plus semicolon। CTRL के साथ अगर आप shift प्रेस करते हो और semicolon प्रेस करते हो तो वो आपका insert करता है current data को। नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 159, which command is used to calculate the total character in a cell, एक सेल में total character कितने हैं, that कौन सा ऐसा कमांड है जो कैलकुलेट करता है, एंड दैट इज len, LEN। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 160, नेम्ड शॉर्टकट की टू फिल द वैल्यू ऑफ जस्ट अबव सेल, हमारा कौन सा ऐसा शॉर्टकट की है जो फिल करता है वैल्यू को जस्ट अबव द सेल, दैट इज CTRL प्लस D। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 161, CTRL प्लस I शॉर्टकट की इज यूज, CTRL के साथ अगर आप I प्रेस करते हो तो कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होता है, दैट चेंज द कंटेंट ऑफ अ सेल टू इटैलिक्स, वो आपका चेंज करता है कंटेंट जो आपका सेल में इटैलिक्स में होता है, अगर इसका कंटेंट का सेल चेंज करता है दैट इटैलिक्स हो जाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 162, द फार्मूला इन एक्सेल आर मेड अप ऑफ, फार्मूलाज जो होते हैं एक्सेल में वो किससे मेड अप ऑफ होते हैं, दैट इज़ द अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड फंक्शन, अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड फंक्शन से हम वो फार्मूलाज बनाते हैं एक्सेल्स में जो आज के टाइम पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 163, which command we will use to get the specified string from the left, कौन सा ऐसा कमांड है जिसमें हमको स्पेसिफाइड स्ट्रिंग मिलता है लेफ्ट से, दैट इज द लेफ्ट ओनली। ओके, लेफ्ट से चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट ही हमें देगा। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 164, which command we will use to repeat the string certain time, certain time अगर हमें रिपीट करना है स्ट्रिंग को तो हम कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्रॉपर जो है वो हमारा प्रॉपर जो है वो हमारा कमांड यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 165, विच कमांड अटैच अनदर पैकेज फाइल इन एक्सेल, हमारा कोई दूसरा पैकेज फाइल जो है वो हमारा एक्सेल में अगर कौन सा अटैच करता है, दैट इज़ हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 166, बाय विच मेन्यू वी कैन मेक अ डेटाबेस ऑफ आवर वर्कशीट डेटा, हम अपने वर्कशीट डेटा का डेटाबेस किस मेन्यू से बनाते हैं, दैट इज डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 167, बाय विच ऑप्शन वी कैन शो एंड प्रिंट द ग्रिड लाइंस, हम कौन से ऑप्शन से शो करते हैं और प्रिंट करते हैं ग्रिड लाइंस को, दैट इज़ पेज सेटअप। पेज सेटअप जो आपका है ऑप्शन, इससे हम शो भी करते हैं एंड प्रिंट भी करते हैं ग्रिड लाइंस को। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 168। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 168, कंप्यूटर में जंक ईमेल, जो जंक ईमेल होते हैं उसे क्या कहते हैं, दैट इज़ स्पैम कहते हैं उसे, ठीक है, एज आई सेड स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 169, सॉफ्टवेयर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, सॉफ्टवेयर को हम किस अदर नाम से जानते हैं, दैट इज़ योर प्रोग्राम, जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 170, कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम करने के लिए किया जाता है, तो कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम करने के लिए करते हैं, एंड दैट इज़ फोर्ट्रॉन का यूज़ करते हैं, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 171, फोर्ट्रॉन का क्वेश्चन नंबर 171, दैट इज़ फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप क्या होता है, फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जिसे हमने इंग्लिश में भी लिखा है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 172, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है, वाईफाई का पूर्ण रूप होता है वायरलेस फिडिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 173, WWW, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाया है, दैट इज़ टिम बर्नर्ली ने WWW वर्ल्ड वाइड वेब बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 174, CD का कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस नाम से जाना जाता है, तो CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस नाम से जाना जाता है, दैट इज़ ऑप्टिकल डिस्क। CD को हम दैट इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क की जगह हम ऑप्टिकल डिस्क भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 175,
विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? सबसे पहला प्रथम नेटवर्क कौन सा है? दैट इज़ आर्पानेट। आर्पानेट दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 176। कंप्यूटर यूज़र की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? दैट इज़ ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 177। किसी चलते हुए कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना उसे क्या कहते हैं? अगर कोई चलता हुआ कंप्यूटर है और अचानक वो बंद हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? दैट इज़ क्रैश। क्रैश हो जाता है कंप्यूटर। ओके, इसे हम क्रैश कहते हैं। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 178। 178 क्वेश्चन, रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। आर स्टैंड्स फॉर रैंडम, ए स्टैंड्स फॉर एक्सेस, एम स्टैंड्स फॉर मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 179। रॉम का पूर्ण रूप क्या होता है? रॉम का रीड ओनली मेमोरी, आर स्टैंड्स फॉर रीड, ओ स्टैंड्स फॉर ओनली एंड एम स्टैंड्स फॉर मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 180। जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? अगर हमने कंप्यूटर से किसी को प्रिंट करवाया है, किसी डॉक्यूमेंट को, उसको बाहर निकाला, तो उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज़ नोन एज हार्ड कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 181। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 182। IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? दैट इज़ 128 बिट। 128 बिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 183। किसी भी प्रोग्राम का चित्र रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो किसी भी प्रोग्राम के चित्र रूपांतरण को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 184। पैरेलल पोर्ट मुख्यतः किस डिवाइस से में इस्तेमाल होती है? तो पैरेलल पोर्ट मुख्यतः किस डिवाइस में इस्तेमाल होती है? एंड दैट इज़ प्रिंटर। प्रिंटर में इस्तेमाल होती है। मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 185। 185 क्वेश्चन इज गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र कौन सा है? दैट इज़ क्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 186। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 186। कंप्यूटर में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्यूटर में यूएसबी का पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। U stands for universal, S stands for serial, B stands for bus. Okay, so USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 187। कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का संबंध किससे है? पेंटियम शब्द का संबंध जो है वो आपका माइक्रो प्रोसेसर के से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 188। 188 क्वेश्चन, दैट इज़ एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? एप्पल कंपनी ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है उसका क्या नाम है? दैट इज़ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 189। किसी भी बैंक में चेक की रीड करने के लिए किसी विधि का प्रयोग किया जाता है? दैट इज़ MICR। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 190। MICR का पूर्ण रूप क्या होता है? MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। M स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक, I स्टैंड्स फॉर इंक, C स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर एंड R स्टैंड्स फॉर रीडर। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 191। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में क्या प्रयोग होता है? प्रथम पीढ़ी जो कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसमें बनाने के लिए क्या इस्तेमाल हुआ था? दैट इज़ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 192। 192 क्वेश्चन, WW का बैकबोन किसे कहा जाता है? WWW दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब का बैकबोन किसे कहते हैं? दैट इज़ HTTP। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 193। वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज़ वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। V stands for vital, I stands for information, R stands for resource, U stands for under and S stands for seas. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 194। ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? दैट इज़ कंपाइलर। कंपाइलर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 195। वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? दैट इज़ ब्राउज़र। वेबसाइट को देखने के लिए अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर को देखना है तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 196।
कंप्यूटर में किसी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो अगर हम बोले तो हमें रिफ़्रेश करना पड़ता है। अगर हमें फिर से लोड करना है उसे तो हमें रिफ़्रेश बटन का इस्तेमाल करना पड़ता है। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, योर क्वेश्चन नंबर 196। कंप्यूटर में यूपीएस दैट इज़ यूपीएस का मुख्य कार्य क्या होता है? यूपीएस का मुख्य कार्य क्या होता है? दैट इज़ बिजली जाने के बाद बैकअप पावर प्रदान करना। यूपीएस का क्या काम होता है कंप्यूटर में? बिजली जाने के बाद, लाइट जाने के बाद बैकअप पावर को प्रदान करना यूपीएस का काम होता है। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 198। कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से 9 तक के की को क्या कहते हैं? 0 से 9 तक के जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो कीज़ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज न्यूमेरिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 199। किस डिवाइस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस भी कहते हैं? दैट इज़ माउस। माउस को हम पॉइंट एंड ड्रॉ भी डिवाइस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 200। कंप्यूटर में किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए माउस बटन को पकड़ करने के लिए को क्या कहते हैं? दैट इज़ ड्रैगिंग कहते हैं माउस बटन को पकड़ के उसको फिर हम मूव करने के लिए, जो भी कोई टेक्स्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है उसको मूव करने के लिए हम उसे ड्रैगिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 201। किसकी मदद से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदला जा सकता है? किस चीज़ की मदद से मैसेज को सांकेतिक शब्द में बदल जा सकता है? दैट इज़ एनक्रिप्शन यूज़ करते हैं हम सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 202। कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? दैट इज़ अ प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 203। कंप्यूटर में आईसी चिप्स किसने बनाया है? किसके बनते हैं? किस चीज़ के बनते हैं? तो आईसी चिप्स किस चीज़ के बनते हैं? दैट इज़ इंटीग्रेटेड सर्किट जो है दैट इज़ सिलिकन से बनते हैं। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 204। कंप्यूटर में रैम किस तरह की मेमोरी होती है? रैम किस तरह की मेमोरी थी? दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज़ वोलेटाइल मेमोरी। रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 205। कंप्यूटर में रॉम किस तरह की मेमोरी है? रॉम को क्या मेमोरी कहते हैं? दैट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं एंड रॉम को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। 206 क्वेश्चन। ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज जगह को क्या कहा जाता है? दैट इज़ मेल बॉक्स। ईमेल संदेशों के लिए जो स्टोरेज जगह होती है उसे हम मेल बॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 207 दैट वी हैव। कंप्यूटर में 207 क्वेश्चन। कंप्यूटर में नियमों का सेट जो कंप्यूटर एक दूसरों से बात करने के लिए अनुमति प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? दैट इज़ प्रोटोकॉल। सो क्लास आज हमने 207 क्वेश्चंस कर लिया है। सो गो थ्रू विथ ऑल द क्लास विच वी हैड डन। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव योर सजेशन ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।